Hello students, welcome back to our YouTube channel Empower Education. I am your chemistry teacher and your guide Tejashri. Wait a minute student. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god, so many stars are there. Students, have you ever wondered how many stars are there in the sky? Can you count all the stars? Actually, astronomers estimate that there is a mole of stars in the universe. With that interesting concept, in today's video session, we are going to learn about mole concept. What we are going to learn? Let's see one by one. We are going to learn Avogadro's number. We are going to learn about mole. We are going to learn about their calculation with some examples and molar mass and its example. So let's start with Avogadro's number. So what is Avogadro number? Actually, it is the number which is represented by the letter capital N. It is the number of atoms in 12.1 grams of carbon and its numerical value is 6.02 into 10 raised to 23. Actually, students, Avogadro number is the name which is given by the great scientist Amedeo Avogadro, which was an Italian scientist, and he is most noted for his contribution to molecular theory, which is further known as Avogadro's law. So let's see what is the actual value of Avogadro number. तो उनको ऑनर करने के लिए ये जो नंबर है उनको एवोगाड्रो नंबर ऐसे भी कहा जाता है. So what is the actual value? Let's see student. Actually the value is 6.02 to 14179 into 10 raised to 23. Okay, but we are going to use only 6.02 into 10 raised to 23. So this is all about Avogadro's number. But student, here the number of atoms in 12.1 grams of carbon means what? Actually, that means 12.01 gram sample of carbon. As you know, carbon is represented by capital C, contains 6.02 into 10 raised to 23 carbon atoms, as you can understand. Okay, so this is all about Avogadro's number. Moving further, now we are going to learn about the mole concept. Okay, so what is mole? As you can see, mole is further written as MOL. It is a unit to measure the particular amount of a chemical substance. A mole is Avogadro's number of particles. Simply you can say it as it is the unit of measurement. Unit of measurement of what? Amount of that particular substance. In chemistry, the mole is a fundamental unit in System International Unit, which is further known as SI unit. Okay, and it is used to measure amount of a substance. As we have to write, a mole is Avogadro's number of particles. That means Avogadro's number of particles, that means 6.02 into 10 raised to 23 particles. My dear students, 1 mole is nothing but 6.02 into 10 raised to 23 particles, which is known as Avogadro's number of particles. So student, if I have asked one question to you, okay, which has a greater number of mole? Okay, mole of cotton or mole of salt, or 1 mole of salt or 1 mole of cotton? What will be your answer? Actually, student, both are same. How? Because 1 mole of element, as you can see, 1 mole of element
is equal to another mole of other element, and same for the compound, means 1 mole of compound, 1 mole of one compound is equal to 1 mole of other compound. Okay, so student, again we are going to repeat the same thing. It is the unit of measurement of amount of substance. Okay, so it is nothing but Avogadro's number of particles, means 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to 23 particles. So in this way, 1 mole of element is equal to 1 mole of other element. 1 mole of a compound is equal to 1 mole of other compound. Okay, so this is the basic information regarding with mole. So let's move further. Now we are going to talk about mole calculations. Yes, we are going to see examples for it, but इसमें क्या क्या दिया है? Okay, so first of all we are going to use here unit analysis method, which is further known as problem solving method. Okay, तो यहाँ पे यूनिट एनालिसिस मेथड को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऐसे भी कहते हैं. तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स मैंने दिए हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू राइट डाउन द यूनिट रिक्वेस्टेड, जो यूनिट दिया होगा उसको लिखना है. सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, सेकेंडली वी हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यू. जैसे कि हम लिखते हैं एक प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या दिया है वो हम गिवन करके लिखते हैं, राइट. सो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, we have to write down the given value, as you can see. Third, we apply unit factors to convert the given units to the desired units. Okay, so these are the 3 steps for mole calculation. Again we are going to repeat for you. पहले हमें क्या कर रहा है, we have to use problem solving method, which is further known as unit analysis method. पहले हमें क्या करना है कि जो यूनिट है रिक्वेस्ट किए हुए वो लिखना है हमें. Then what we have to do, we have to write down the given values. And third, what we have to do, we have to convert the given factors into the given unit, into the desired units. Okay, अभी ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे करना है, क्या करना है, मैम क्या बोल रहे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू स्टूडेंट्स. अभी यहाँ आपको प्रॉब्लम समझकर लेना है. Then you have to try to solve that example. Okay, अभी मुझे थोड़ा सा रिपीट करने दो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. हमने क्या क्या देखा है, अभी आपको ये तो समझ में आया है कि 1 मोल इज नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू 23 पार्टिकल्स. ये आपको समझ में आया है. मोल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज वन ऑफ द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस. ओके, तो यहाँ पे ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मोल के बारे में पता है. अभी हमने 3 स्टेप्स देखे हैं क्या क्या करना है हमको. ओके, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. अभी देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर इन 0.120 मोल ऑफ Na. तो समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या है. फिर से आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. How many sodium atoms are in 0.120 mole of Na? Okay, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं as you can see. Okay, फर्स्ट स्टेप में हमको ये जानना है कि हमको क्या करना है. So what you have to do? Okay, see here. We want atoms of Na. हमको क्या चाहिए, हमको सोडियम एटम्स चाहिए. We want atoms of Na. Okay. What we have, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 0.120 मोल ऑफ Na. We have how much moles of Na? We have 0.120 mole of Na.
अभी आपको ये पता है कि हमको क्या करना है, हमको एटम्स ढूंढने हैं। किसके एटम्स ढूंढने हैं? हमको सोडियम के एटम्स ढूंढने हैं। व्हाट वी हैव 0.120 मोल ऑफ Na। ओके, तो आपको अभी जो हमने पढ़ा है उसमें तो ये आपको याद होगा ही जरूर कि 1 मोल ऑफ Na इज नथिंग बट Avogadro number of particles. So 6.02 into 10 raised to 23 atoms. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर दिया है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे देखना है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है। सो आंसर इज ऑलरेडी गिवन देयर, बट लेट्स सी कि ये आंसर कैसे है। आंसर इज 7.22 into 10 raised to 22 atoms of Na. सो लेट्स सी कि यहाँ पे प्रॉब्लम में हमको, हमारे पास 0.120 मोल ऑफ Na है, हमको सोडियम के एटम्स ढूंढने हैं इतने मोल में से। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to do here, first of all I am going to write down which is given. Okay, here I am going to write down, so 0.120 mole of Na, as you can see, okay, into what we have further, into 6.02 into 10 raised to 23 डिवाइडेड बाय 1। एक मोल में से हमको ये सोडियम एटम्स ढूंढने हैं। कितने मोल्स दिए ऑलरेडी? वी हैव 0.120 मोल ऑफ Na। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 0.120 into 6.02 into 10 raised to 23. So calculate student, your answer will be this. Okay, सिंपली क्या किया फिर से बताती हूँ। पहले हमने देखा, प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ा, दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले आपको पढ़ना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या करना है। हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर इन 0.120 मोल ऑफ Na। ओके, तो स्टेप 3 स्टेप्स है हमारे पास। पहले हमने देखा कि हमको क्या चाहिए, वी वांट एटम्स ऑफ Na। देन हमने सेकेंड स्टेप पे फोकस किया। क्या फोकस किया? व्हाट वी हैव 0.120 मोल ऑफ Na। फिर उसके बाद हमने जो मोल कंसेप्ट है उसको यूज किया कि 1 मोल ऑफ Na इज इक्वल टू Avogadro number of particles which is 6.02 into 10 raised to 23 atoms, or simply I have applied this togetherly and you can see this is your result, 7.22 into 10 raised to 22 atoms of Na। okay, after the calculation। so student, यहाँ पे पहले मैंने एक एग्जांपल ऐसे लिया है कि आपको एटम्स फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द गिवन मोल। so let's take another example for your understanding। okay, अभी सेकेंड एग्जांपल में क्या है? अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम। हम पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिया है। ओके, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम आर इन 1.25 into 10 raised to 21 atoms of potassium। K means potassium, as you know। अभी यहाँ पे हमको मोल्स फाइंड आउट करने। पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था? हमने फाइंड आउट किया था हाउ मेनी एटम्स। अभी हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, दैट विल बी योर स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सी, वी वांट मोल्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इट इज वेरी क्लियर। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? सेकेंड स्टेप में वी हैव व्हाट वी हैव। ओके, यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, विच इज 1.25 into 10 raised to 21 atoms of potassium। ओके, तो अगेन 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to 23 particles, राइट? आपको वो याद है। यहाँ पे मैंने अगेन डायरेक्टली आंसर दिया है कि 2.08 into 10 raised to -3 मोल ऑफ K। सिंपल है। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स। ओके, what we are going to do, simply here I am going to write down for your information, as you can see here।
So first of all, I'm going to write down what we have, okay, which is 1.25 into 10 raised to 21, which are the atoms of potassium. Okay, I'm not going to write down atoms of potassium, that you already know. Into what you have to find out, you have to find out moles of potassium. तो यहाँ पे हम let's take 1 mole, okay, 1 mole of K that you have to find out, na? Yes, correct. What we have 6.02 into 10 raised to 23. अभी हमको ये फाइंड आउट करना है, ओके, दीज आर द एटम्स ऑफ पोटेशियम. ये 1 मोल ऑफ K इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to 23 एटम्स ऑफ पोटेशियम. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे मल्टीप्लीकेशन. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मल्टीप्लीकेशन भी करके देख सकते हो, बट आंसर विल बी नॉट दिस. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, simply we are going to do 1.25 into 10 raised to 21 divided by 6.02 into 10 raised to 23, and your answer will be 2.076 into 10 raised to minus 3, which is the approx value. ओके, यहाँ पे आपने देखा मैंने 2.08 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 लिखा है, विच इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस. ओके, सो इन दिस वे स्टूडेंट, ये दो प्रॉब्लम्स में हमने क्या सीखा, हमने पहले ये देखा कि फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि एटम्स है हमारे पास. ओके, तो हमने क्या किया, एटम्स विद द हेल्प ऑफ दैट एटम्स वी हैव फाउंड आउट दैट हाउ मेनी मोल्स आर देयर. एंड इन सेकेंड प्रॉब्लम हमने क्या किया, हमारे पास थे एटम्स और उससे हमने मोल्स फाइंड आउट किए. ओके, फर्स्ट में हमने क्या किया था कि वी हैव मोल्स, सॉरी बाय मिस्टेकन, फर्स्ट में हमारे पास मोल्स थे और उससे हमने एटम्स कैलकुलेट किए. और सेकेंड में हमने क्या किया, सेकेंड में हमारे पास एटम्स थे और उससे हमने मोल्स कैलकुलेट किए, राइट. सो दीज आर टू एग्जाम्पल्स यू कैन सी. ओके, सो मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये आपको बताने की कोशिश की है. मूविंग फर्दर माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मोलर मास. तो आप मोल कंसेप्ट पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो. ओके, ट्राई टू सॉल्व द वेरियस एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मोलर मास. So what is molar mass? Again we are going to focus on the definition. The atomic mass of any substance expressed in grams is the molar mass, which is represented by mm, molar mass of that substance. Okay, यहाँ पे अभी हम एक example लेंगे for your understanding. Okay, तो suppose okay, for example iron लेते हैं. We are going to take example of iron. As you know, atomic mass of iron Fe, which is known as iron. Okay, उसका atomic mass जो है 55.85. So अभी मैंने क्या बोला, मोलर मास इज नथिंग बट द एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. तो अगर मैं आयन का आपको मोलर मास पूछूंगी तो व्हाट विल बी योर आंसर हियर? योर आंसर विल बी 55.85 ग्राम पर मोल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, मोलर मास ऑफ आयन. समझ में आया कि उसका जो एटॉमिक मास है जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल बी इट्स मोलर मास. तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिया है.
let's take one example na student. So yes, here I have one example. Okay, abhi dekho, the molar mass of a substance is the sum of the molar masses of each element. It is the sum of molar masses which are also known as atomic masses of each element. Okay, तो यहाँ पे let's take, we are going to calculate the molar mass of magnesium nitrate. So what is the formula of magnesium nitrate? MgNO3 twice. Okay, तो अभी देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैंने यूनिट जो यूज किया है वो दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. AMU का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट. तो क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है कि सबके एटॉमिक मासेस लिए हैं और उसकी एडिशन की है. अभी मैग्नीशियम का देखो, यू नो दैट कि मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक मास, तो पर यहाँ पे हमने 24.31 लिया है. क्यों लिया है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे 2 है ना, ट्वाइस है, सो यहाँ पे 2 mg हो गया. तो हमने सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया 12 को. सो अप्रोक्स वैल्यू है वो 24.31. अगेन वी हैव हियर 2. ये पूरे मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 है. हाँ, तो अभी वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ब्रैकेट. नाइट्रोजन का यू नो दैट विच इज 14 एटॉमिक मास. ओके, बट यहाँ पे फोकस कीजिए कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 3 है. सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? एक्चुअली इट इज 16 ना, राइट? पर इंटू 3 है, इसकी वजह से 16 प्लस 16 प्लस 16, या फिर आप सिंपली 3 इंटू 16 भी कर सकते हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, इन सबके एडिशन करेंगे. वी हैव 24.31 विच इज फॉर मैग्नीशियम, देन 2 इंटू दिस, 2 इंटू 62.01, ये सब ब्रैकेट वैल्यू है. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट दिस 148.33 AMU, atomic mass unit. But we want molar mass. So molar mass is nothing but what? The atomic mass which is expressed in grams. तो अभी मुझे इसका मोलर मास लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगी? Which is 148.33 ग्राम पर मोल. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? सो मोलर मास हमने क्या किया है? एटॉमिक मास. ओके, विच इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसके लिए लिया है. तो यहाँ पे देखिए अगेन कि द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज व्हाट? द सम ऑफ द मोलर मासेस ऑफ ईच एलिमेंट. यहाँ पे हमने हर एक एलिमेंट का क्या किया है? मोलर मास का सम लिया है. मोलर मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास. तो हर एलिमेंट के एटॉमिक मास की हमने सम ली है. अभी हमारे पास ये आंसर आया है, बट ये आंसर जब हम ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी इट्स मोलर मास. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? मोलर मास. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है. ओके, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको वो समझ में आ जाए. ओके, so this is all about atomic molar mass concept, and in previous we have discussed about the mole concept. So moving further my dear student, I have taken one another example. Okay, अभी यहाँ पे आप देखो हमें क्या करना है. We have to calculate the mass of 1.33 moles of titanium. Okay, Ti. Now we will use the molar mass of a compound to convert between grams of a substance and moles or particles of a substance. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो अभी. What we have first step. तो यहाँ पे we are going to use, first of all what we are going to see, what we want. We want what? We want grams of titanium. Okay, that we want. What we have? We have 1.33
moles of titanium, right? Okay, तो अभी हम क्या करेंगे कि we are going to use the molar mass of titanium. Okay, so molar mass of titanium, it is the molar mass of titanium. Okay, so what is the molar mass of titanium, which is 47.88 gram. Okay, so ये है titanium का molar mass. Now we are going to see the calculation. 1.33 moles of titanium, okay, into 47.88 gram of titanium divided by, because we have to find out the moles, right? So we have to find out the mass. So here 1 mole, 1 mole of obviously titanium. So what will be your answer? Simply you have to multiply 1.33 moles of titanium into 47.88 gram of titanium. So your answer will be 63.79 gram. So that is the mass, molar mass of the titanium. I hope कि आपको ये समझ में आया. Again we are going to see, यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, we have 1.33 moles of titanium, right? हमें क्या करना है, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है टिटेनियम का. मोलर मास ऑफ टिटेनियम हमने देखा 47.88 ग्राम. यूज द प्रीवियस नॉलेज, ओके, जो हमने अभी देखा. देन वी हैव सिंपली डन 1.33 moles of titanium into 47.88 gram of titanium upon 1 mole, which is equal to 63.79 gram of titanium. So in this way, this is the mass of titanium, which is expressed in gram. ओके, सो स्टूडेंट, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आया है. अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, सो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तो मैं जरूर उस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी. उस पर मैं और एक वीडियो आपके लिए ला सकती हूँ. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट. अगर आपको समझ में भी आया है तो आप थम्स अप करना, थोड़ा सा चीयर अप करना. ओके, सो दैट कि मुझे भी लगे कि हाँ, आप सबको वो समझ में आ रहा है. ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर माय डियर स्टूडेंट. सो हमने आज क्या क्या पढ़ा ये अभी पहले हम देखेंगे. वी हैव लर्न अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर, विच इज 6.02 into 10⁻23. इट हैज नो यूनिट. ओके, एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसको आपको याद आ रहा है? मैंने बताया था वीडियो में. अगर नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से वीडियो देखो. ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मोल. ओके, द मोल कंसेप्ट, इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ amount of substance, right? In chemistry it is used as unit in international system unit, SI unit, which is also known as SI unit. तो वो हमने देखा. हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए. पहले हमने क्या किया था, हमारे पास क्या थे, एटम्स थे, उससे हमने क्या किया, कितने मोल्स है वो फाइंड आउट किया. मोल्स दिए थे, फिर उससे कितने एटम्स है वो हमने फाइंड आउट किया. वी हैव लर्न अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विच इज molar mass. Okay, so molar mass is nothing but the atomic mass is expressed in grams. तो in short आपको क्या ध्यान में रखना है, 1 mole is equal to 6.02 into 10⁻23 particles, students, and 1 mole is nothing but the molar mass. Okay, हमने एग्जाम्पल्स लिए. मोलर वॉल्यूम एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स. अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए होगा तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ओके, तो आई हैव सम क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है, क्वेश्चंस फॉर यू स्टूडेंट्स. तो आप ऑन स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे वो देख सकते हैं. हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 70.9 ग्राम ऑफ फ्लोरीन? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन 120 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. हमने जो पढ़ा है उसको यूज करने की कोशिश कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो. केमिस्ट्री के ये कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आ रहे हैं मैम, तो प्लीज कमेंट करो. ओके, एंड लास्ट
but not the least, don't forget to like, share and subscribe to our channel. आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके आपके सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करते हैं. That's it for today, students. Take care.